days. That's all you have. 15,400 students, 245 seats, and less than 2% selection rate. So the question is, if I'm starting right now, तो क्या USEED में top ranks आ सकती हैं जिससे कि I can get a seat in IITs? And here's the truth: 90 days are more than enough to crack USEED and get a topper rank. And last year हमारे कई सारे students जो हमारे 90 days crash course के students थे were able to get great ranks. And उनमें से कुछ ने तो USEED का syllabus उससे पहले छुआ भी नहीं था. But there was one thing which is rare among most of the students. That is consistency and having a right strategy. In the next 20 minutes, I will be giving you out the strategies that these students follow. But तुम्हें एक चीज बताऊं, honestly speaking, strategy होना और strategy बताना कोई बड़ी बात नहीं होती है. I would say the hardest thing ever is doing the hard work, यानी कि execution. Because हर साल हजारों students prepare करते हैं USEED के लिए. Most of them never get serious. Stay till the end because मैं वो strategy share करने वाला हूँ जिससे we were able to get all India rank 2, 4, 8, 10 and more than 15 plus students join multiple IITs. And you know what? Most coachings will never tell you their strategy उनके toppers follow करते थे या वो अपने toppers को देते हैं. But this is different. Hey guys, my name is Devansh. I'm the founder of Divergent Classes, India's #1 topper mentorship program जहाँ पे IITs, NIDs, NIFT के top rankers prepare you for these design exams live. We're also famous for our resources, mock tests, DPPs, etc. हमारी free communities के link description में है, तो अभी जाके join कर लो if you're not a part of them, because बहुत सारी free resources and चीजें हम वहाँ share करते ही रहते हैं. As well as you will be able to find people just like you जो determined हैं इस exam को crack करने के लिए. Without wasting any more time, let's get started with the actual strategy. Strategy overview. This strategy is divided into 3 phases. First is foundation. Foundation phase के अंदर हमारा focus रहेगा habits को build करने का, as well as most of the syllabus हम foundation phase के अंदर ही cover कर रहे होंगे. यहाँ पे हम सिर्फ एक mock test दे रहे होंगे जिससे कि हमें एक थोड़ा सा expectation मिल जाए कि हाँ अभी हमारा level क्या है. Other than that हम सिर्फ fast years पे focus कर रहे होंगे. Phase 2 is your mastery या फिर building up phase, because यहाँ पे आपको actual hustle करना है and इस phase में आप actually में जितना अपना best दे सकते हो वो देना है. यहाँ पे we will be completing 7 mocks, which is I know थोड़ा सा ज्यादा, but yeah that is required. As well as यहाँ पे हम accuracy पे बहुत focus कर रहे होंगे, because अगर वो last के month के लिए छोड़ दिया तो last में you will be panicking a lot. Exam में nobody is scoring 200 out of 200. So यहाँ पर भी 80-20 principle matter करता है. 80-20 principle के हिसाब से भी you have to focus on those 20% of the things that can fetch you 80% of the marks. So in mastery phase we will be avoiding all the silly mistakes और जितनी भी हमारी weaknesses हैं उसको हम master कर रहे होंगे इस phase के अंदर. Third phase is mindset and review. इस phase के अंदर हम 3 mocks दे रहे होंगे, अपने आप को strategic rest भी दे रहे होंगे, because इस time पे we will be really working on mindset and थोड़ा बहुत time management पे भी focus कर रहे होंगे. And these are the few final stage. इसके अंदर हम कोई overwhelming नई information को अपने दिमाग के अंदर नहीं डाल रहे होंगे. Yeah, that was about the overview of the strategy. अभी हम इस strategy के अंदर एकदम डिटेल जाने से पहले एक दो चीजों को मैं आंसर कर देता हूँ. मे बी आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन होंगे तो मैं उनको पहले आंसर कर देता हूँ. काफी लोगों के दिमाग में ये होगा कि हमें पास्ट ईयर्स अभी करने चाहिए या बाद के लिए करने चाहिए, या पास्ट ईयर्स मुझे मॉक की तरह देने चाहिए या फिर नहीं, और भी कई सारे क्वेश्चन अबाउट दैट. पास्ट ईयर्स आपको डे 1 से ही देने चाहिए. पास्ट ईयर्स आप मॉक की तरह भी दे सकते हैं, बट अगर आपका स्कोर बहुत ही कम आ रहा है लाइक 30-40, तो आपको वो 1 by 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉजिक एंड बिल्ड अपॉन देम. एज वेल एज पास्ट ईयर्स इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर USEED, बिकॉज दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या लॉजिक एंड थॉट प्रोसेस होती है. यू विल बी एबल टू बिल्ड अ कनेक्शन बिटवीन द क्वेश्चन एंड योर सिलेबस. एंड रिसोर्सेज के पीछे मत भागना. फर्स्ट वीक के अंदर जो रिसोर्सेज गैदर कर ली वो कर ली. नॉट फोकस ऑन कलेक्टिंग मल्टीपल रिसोर्सेज, बिकॉज 90 डेज ऑलरेडी बहुत कम है. यू हैव टू गेट लेजर फोकस ऑन द स्टफ यू गॉट. एंड अगर गाइडेंस चाहिए तो यू कैन ज्वाइन अ 90-day डेडिकेटेड USEED बैच दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of October, जिसके अंदर IITs के टॉपर सारा सिलेबस कवर करवा रहे होंगे फॉर USEED. एज वेल एज हम 10 से ज्यादा मॉक्स भी दे रहे होंगे जिससे कि रियलिटी चेक मिलता रहे. उसके अलावा डाउट सेशंस एंड पार्ट बी रिव्यूज रेगुलरली होते ही रहते हैं. यू विल ऑल्सो हैव अ प्राइवेट कम्युनिटी एंड टाइम टू गेट अ one-on-one interaction with these toppers. बैच ज्वाइन करने के तो बहुत सारे perks हैं. As well as you can use my code Devansh to get 5% off on our courses. So now let's get deep into the phase 1. Phase 1 is the phase where students make the biggest mistakes. And वो time अगर एक बार चला गया, this time is very crucial. यही आपको head start दे रहा होगा. So pay close attention to the things I'm saying.
Week 1, your daily routine will be looking like Part B practice 1 to 2 hours in the morning, then moving on to Part A topics for another 2 to 3 hours. Evening में you will be attempting a past year or solving divergence DPP. Night में you will be revising all the things जो उस दिन पढ़ी हैं. And do not skip this step because मैंने भी अपने टाइम पे रिवीजन हमेशा स्किप भी करा है because मैं तो बहुत समझदार हूँ, राइट? सॉरी टू ब्रेक इट टू यू बट आप इतने भी समझदार नहीं हो. रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यू नो व्हाट, हम डेली सिर्फ 5 to 6 आवर्स पढ़ रहे हैं विच इज ग्रेट एंड इवन मैनेजेबल फॉर समवन हु इज इन स्कूल. कई लोगों के लिए 5 to 6 आवर्स बहुत ज्यादा हो सकता है. मे बी फॉर सम ड्रॉपर्स एंड पीपल 5 to 6 आवर्स बहुत कम हो सकता है, बट एक्चुअली में इतना ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रिपरेशन. बट अगर आप डिस्ट्रैक्टेड थे पूरे ड्यूरेशन में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता आप कितने भी घंटे पढ़ लो. सो वीक 1 में जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, डे 1 पे वी विल बी स्टार्टिंग विद विजुअलाइजेशन टॉपिक एज वेल एज 25 के स्पेशल रीजनिंग के क्वेश्चन, बिकॉज एज वी ऑल नो मोस्ट ऑफ द पेपर कंसिस्ट विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल रीजनिंग वाले क्वेश्चन, एंड वो क्वेश्चन एक्चुअली इजी भी होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद थिंग्स रिलेटिवली इजियर है. मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. कुछ वीडियोस देख सकते हो हमारे चैनल पे, एज वेल एज वी हैव अ सीरीज ऑन इंस्टाग्राम जिसके अंदर हम एरिया एंड स्पेस रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं. सो फॉलो अस देयर टू. सेकंड डे हम लॉजिकल रीजनिंग एंड 25 के पेपर से उस टाइप के क्वेश्चंस ही कर रहे होंगे. थर्ड डे वी विल बी डूइंग ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन एज वेल एज 25 और 24 के पास्ट ईयर से भी क्वेश्चंस ले रहे होंगे. फोर्थ डे विल बी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. साइंटिफिक नॉलेज वाले दिन कोई और चीज मत करना बिकॉज इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, एज वेल एज इसके अंदर थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है. और टॉपिक्स में थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड थे, बट साइंटिफिक नॉलेज में यू हैव टू नो अ बेस लेवल ऑफ थ्योरी. एंड हो सकता है तुमसे सब चीजें कवर ना हो पाए, बट एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम सारे पास्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा गो थ्रू कर पाओ एंड इतना समझ पाओ कि यार हर साल किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुम सब कुछ सॉल्व कर लोगे, सब कुछ तुमसे हो जाएगा एंड तुम एक दिन में पूरा टॉपिक कवर कर लोगे. इतना आसान होता तो हर कोई एक टॉपर होता, राइट? द पर्पस इज जस्ट टू गेट यू फेमिलियराइज विद द मेजर पोर्शन ऑफ द एग्जाम. डे 5 पे वी विल बी गोइंग कल्चरल हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस एज वेल एज लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज एज वेल एज उससे पहले वाले पीवाईक्यूज करना मत भूलना, बिकॉज ज्योग्राफी एंड हिस्टोरिकल क्वेश्चंस लास्ट ईयर में सडन चेंज आने की वजह से बड़े हैं, तो इन पे बहुत फोकस करना, बट ज्यादा भी मत करना बिकॉज यू नेवर नो अगले साल क्या हो जाए. एंड ये टॉपिक अनंत है, तुम कितना भी पढ़ लो यू विल नेवर बी एबल टू गेट 100% राइट इन द एग्जाम फॉर श्योर. सो जस्ट फोकस ऑन द मेजर टॉपिक्स. उसके अलावा जीके के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, जीके स्ट्रेटजीज अबव इन द आई बटन. डे 6 पे अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे थे उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करना है एज वेल एज उसी टाइप के और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. इस दिन हमें एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस करने हैं. आवर फोकस विल बी अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन एंड बिल्ड अ मेंटल अप्रोच कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैं क्या करूंगी या करूंगा. डे 7 इज अ मिनी मॉक टेस्ट. मेक अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, सॉल्व इट फॉर योरसेल्फ. बाय द वे ये सब ट्रैक करना काफी मुश्किल होने वाला है. सो इफ यू वांट, अगर मैं एक प्रिंटेबल चेकलिस्ट या फिर एक नोशन चेकलिस्ट शेयर करूं तुम्हारे साथ जिसमें तुम टिक ऑफ कर सको अपनी डेली करने वाली चीजों को, तो ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना इज मैंडेटरी इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दीस. इस पूरे वीक में हम कोई डिफिकल्ट चीज नहीं डाल रहे हैं जो पार्ट बी से रिलेटेड है. वी विल बी ओनली अंडरस्टैंडिंग शेप्स, डूइंग लाइन प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पोजिशन इन यूसीड क्वेश्चंस एज वेल एज प्रोडक्ट डिजाइन होता कैसे है, सोचते कैसे हैं. इन चीजों को हमें डेली प्रैक्टिस करना है एज वेल एज कुछ थ्योरी लेसन भी देखने हैं. वीक 1 के एंड होने तक आपने एक मेजर पोर्शन कवर कर लिया होगा ऑफ यूसीड प्रिपरेशन. लास्ट 3-4 ईयर्स के पास्ट ईयर से भी आप थोड़ा बहुत तो गो थ्रू हो ही गए होगे एंड दिस विल गिव यू अ हेड स्टार्ट इन योर प्रिपरेशन. मे बी थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है बट यू हैव टू मैनेज इफ यू वांट टू गेट द टॉप रैंक. एंड दिस इज द प्लान फॉर वीक 2. इसके अंदर हम स्टडी आवर्स को भी बढ़ा रहे होंगे बिकॉज अब हम यूज टू हो चुके हैं यूसीड प्रिपरेशन के. एज वेल एज हम मॉक टेस्ट को पहले एज अ मॉक अटेम्प्ट करेंगे, देन उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे. इवन हम एक सीट का पार्ट ए वाला पोर्शन कर सकते हैं एज वेल एज एक यू सीट का पार्ट ए वाला पोर्शन. दैट विल सेव यू सम टाइम बिकॉज सीट का पार्ट ए पोर्शन छोटा होता है. सीट इज एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर मास्टर्स इन डिजाइन. दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो इन वीक 3. सिमिलरली इस वीक के अंदर भी हम थोड़े स्टडिंग आवर्स बढ़ा रहे होंगे एंड इस वीक के अंदर हमें एटलीस्ट 2 पास्ट ईयर्स अटेम्प्ट करने एंड वो भी यूसीट के ही. एंड अभी तक हमने बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया है एंड हमने थोड़ा बहुत टाइम रिवीजन के लिए भी निकाल लिया है. एंड डे 20 पे तुम्हारा पहला मॉक होगा. काफी लोग सोच रहे होंगे यार अभी तो पूरा सिलेबस करा ही नहीं है, हम मॉक दे ही कैसे सकते हैं, एंड अगर मॉक देंगे तो काफी कम मार्क्स आएंगे. ऐसा नहीं है. डे 20 तक आपने बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया अगर ढंग से पढ़ाई करी है. मे बी इतने कॉन्फिडेंट ना हो बट अगर तुमने ढंग से प्रिपेयर करा है तो तुम अपने एक्चुअल स्कोर के 60-70% तक स्कोर कर पाओगे. एंड इवन हमारे बैचेस में तो मॉक्स सेकंड वीक से ही स्टार्ट हो जाते हैं. बाय द वे मॉक्स करने कहां से हैं? हमारी मॉक टेस्ट सीरीज इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर यूसीट, ऑल क्रिएटेड बाय मेंटर्स एट डाइवर्जेंट क्लासेस. इवन हमारी मॉक टेस्ट सीरीज पे 50% ऑफ चल रहा है. सो गेट इट बिफोर इट गेट एक्सपायर्ड. मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर हम मॉक्स का डिस्कशन भी करवा रहे होंगे एज वेल एज टॉपर्स विल बी गिविंग योर पार्ट बी रिव्यू. इवन वो ये भी दिखा रहे होंगे अगर वो इस क्वेश्चन को लाइव करते तो वो कैसे होता. डे 21 तक आप बहुत एग्जॉस्टेड हो गए होगे. मे बी आपकी स्किल्स इतनी अच्छी ना हो बट आपको डे 1 से ही यूसीड लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाना है जिससे कि यू गेट हैंग ऑफ इट. एंड स्किल्स को
हम स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते रहेंगे। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखना। स्टार्टिंग के लिए यू कैन एक्सटेंड योर सेल्फ टू अप टू 40 मिनट्स, बट उससे ज्यादा अगर स्केच में ले रहे हो, चेंज योर स्ट्रैटेजी एंड प्रैक्टिस इवन मोर। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव सॉल्व्ड मोर देन 950 क्वेश्चंस। तुम्हारे पास 21 पार्ट बी क्वेश्चंस भी होंगे एंड तुमने अभी तक 21 अटेम्प्ट्स एटलीस्ट कर लिए होंगे इन पार्ट बी। एंड इवन लास्ट 4-5 ईयर्स के पास्ट ईयर्स भी तुम्हें ढंग से आते हैं। एंड अगर तुमने फुल फोकस से मॉक दिया तो यू विल बी एबल टू रियलाइज कि यूसीट तो अभी से ही क्वालिफाई कर सकता हूं मैं। सो गेट योर सेल्फ टुगेदर, बिकॉज आगे और भी मेहनत करनी है एंड नेक्स्ट फेज विल बी इवन मोर डिफिकल्ट। एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी एवरी सिंगल टाइम। लेट्स स्टार्ट विद द फेज 2, द मास्टरी फेज। मास्टरी फेज इज द फेज जहां पे एवरेज स्टूडेंट्स और टॉपर्स के बीच की गैप कवर होती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ग्राइंडिंग एंड मेहनत करते रहो सब कुछ हो जाएगा। इट्स ऑल्सो अबाउट डूइंग द स्मार्ट वर्क हेयर। यहाँ पे टाइम एंड स्ट्रैटेजी तो क्रूशियल है ही, हार्ड वर्क भी उतना इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट ग्राइंडिंग स्मार्टर। वीक 4 इज डेडिकेटेड टू योर वीक एरियाज। इसके अंदर मॉक 1 ने तुम्हें क्लियर पिक्चर दे दी होगी कि तुम्हारी वीकनेसेस क्या हैं एंड कौन से टॉपिक में तुम फंस रहे हो। लेट्स से योर वीक एरियाज आर 3D विजुअलाइजेशन 45%, MSQ strategy 55%. वीक 4 इज डेडिकेटली एंटाइटल्ड टू योर वीकनेसेस एंड वीक 4 हर किसी के लिए डिफरेंट दिखने वाला है, बिकॉज हर किसी की एक डिफरेंट वीकनेस होगी। मे बी तुम्हारे लिए पार्ट बी ज्यादा डिफिकल्ट है एंड किसी और के लिए पार्ट ए। देयर आर ओनली लेस देन 0.1% स्टूडेंट्स आउट देयर जो दोनों में ही अच्छे होते हैं एंड 90% ऑफ द टॉपर्स हैव अ एवरेज स्कोर और अबव एवरेज स्कोर इन बोथ ऑफ द थिंग्स। एंड यू नो व्हाट, 80 to 90% ऑफ टॉपर्स उनका बस एक अबव एवरेज स्कोर होता है इन बोथ द सेक्शंस। दोनों को टोटल मिला के दे आर एबल टू गेट अ टॉपर रैंक। बिकॉज अ लॉट ऑफ यू विल थिंक यार अगर मेरा पार्ट ए अच्छा है तो मैं पार्ट ए में और इंप्रूव कर लेता हूँ, पार्ट बी को निग्लेक्ट कर देते हैं एंड दिस इज व्हाई यू विल फेल इफ यू डोंट कंसीडर दिस एंड चेंज योरसेल्फ। एंड दिस इज व्हाट डाइवर्जेंट स्टूडेंट डू, दे अटैक द वीक एरियाज फर्स्ट एंड उनका स्कोर इंस्टेंटली 15 to 20% इंप्रूव करता है एंड दैट इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट। यू नो व्हाट, लास्ट ईयर के टॉपर्स ने मास्टरी फेज के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट देखा एंड ये सिर्फ पार्ट ए में नहीं, पार्ट बी में भी था। मास्टरी फेज के अंदर हम बहुत सारे मॉक्स दे रहे होंगे एज वेल एज उन मिस्टेक्स को एनालाइज करके एक लिस्ट क्रिएट कर रहे होंगे। देन वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट फर्स्ट। वीक 4 में हम बस एक मॉक देंगे एंड उसकी मिस्टेक्स को भी एनालाइज करेंगे। वीक 5 एंड 6 इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। इस वीक के अंदर हम 3 मॉक्स सॉल्व कर रहे होंगे एंड यू नो व्हाट, कई बार मार्क्स इतने मैटर नहीं करते हैं बिकॉज रैंक्स आर द रियल रिफ्लेक्शन। हर साल यूसीड में भी तो कट ऑफ चेंज होती है बिकॉज हर पेपर हर मॉक एक डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के साथ आता है। इजी मॉक्स में ऑब्वियसली तुम भी ज्यादा स्कोर कर रहे होगे, तो मॉक्स के मार्क्स आर नॉट द रियल रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्कोर। मॉक्स में रैंक्स बहुत मैटर करती हैं एंड यू नो व्हाट, आपको बेस्ट पूल ऑफ स्टूडेंट्स के साथ अगर मॉक देना है तो यू कैन परचेज आवर मॉक सीरीज। हमारे बैचेस में करेंटली वी हैव मोर देन 300 पीपल गिविंग आवर मॉक्स। यू विल बी ऑल्सो कम्पीटिंग अगेंस्ट दोज पीपल जो हमारे साथ 6 या 8 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं। दे माइट हैव अ बेटर रैंक देन यू। डिमोटिवेट नहीं होना है बट कंसीडर दिस एज अ मोटिवेशन दैट यू हैव टू बीट देम। एंड अगर मॉक में रैंक्स बढ़ रही हैं तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। ऑब्वियसली कंपटीशन भी बढ़ेगा इन द अपकमिंग मॉक्स बिकॉज एग्जाम आते आते और ज्यादा लोग मॉक्स देना स्टार्ट करेंगे एज वेल एज कंपटीशन इंक्रीज करेगा। बट तुम्हें एक चीज याद रखनी है, यू हैव टू बी इन द टॉप 10% एनी हाउ। यू डोंट हैव टू स्टॉप अंटिल यू हिट योर टारगेट। बट इस चीज का स्ट्रेस मत लेना। मैं तुम्हें एक और चीज शेयर करता हूँ, लास्ट ईयर ऐसा हर टॉपर के साथ होता है, इवन अंकित या रुद्र के साथ भी यही हुआ था एंड देयर विल बी समथिंग। उनके कुछ मॉक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे बट एक मॉक ऐसा था जिसमें सॉ सडन फॉल, राइट। एंड ये मॉक तुम्हारा कोई भी हो सकता है एंड ये फॉल कभी भी आ सकता है एंड यू नो व्हाट, एंड दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ यू वांट टू क्विट। बट जो क्विट नहीं करता है एंड कीप द कंसिस्टेंसी अप विल बी एबल टू अचीव इट। हर एस्पिरेंट की जर्नी में होता है एंड इट विल हैपन टू यू एज वेल, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटली। वीक 5 एंड 6 में हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज एंड चीजों को फॉलो कर रहे होंगे एंड इन दीज वीक्स वी ओनली हैव टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स एंड फाइंड पैटर्न्स एंड फाइंड अ वे टू सॉल्व देम। इस टाइम तक इतने मॉक्स देने के बाद यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट, मे बी नर्वस भी फील कर सकते हो अगर तुमने लास्ट मॉक में कोई ब्लंडर कर दिया हो। एंड यू नो व्हाट, अभी तक तुमने इस वीडियो को देखा है तो दिस इज अ बोनस स्टेप फॉर यू। हमारे टॉपर्स की एमसीक्यू स्ट्रैटेजी। फर्स्ट स्टेप इज टू रीड द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल करेक्ट ऑप्शंस। स्टेप 2, कैन यू कॉन्फिडेंटली मार्क ऑल ऑफ देम? Yes, then definitely mark all of them. But if you are confused between one or two options, then immediately skip that. And usually MSQ में दो से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करने चाहिए बिकॉज एक ऑप्शन होने के काफी कम चांसेस होते हैं एंड इवन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर आपने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करे और आपने 10 में सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करा था एंड आपने आधे क्वेश्चन गलत करे एंड आधे सही, यू विल बी स्कोरिंग अराउंड 0 और थोड़े से ज्यादा। बट 0 कोई अच्छी बात नहीं है बिकॉज यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मार्क। ऑन द अदर हैंड अगर आप 2 से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और आपके आधे क्वेश्चन सही होते हैं और आधे क्वेश्चन गलत होते हैं, वर्स्ट के सिनेरियो में भी आप 5 मार्क्स स्कोर करोगे एंड यू कैन ऑल्सो स्कोर अप टू 15
15 मार्क्स इन दैट सिनेरियो। दोनों ही सिचुएशन में आपकी एक्यूरेसी 50% ही थी, जो कि बहुत ही कम होती है यूसीड के लिए। ज्यादातर टॉपर्स की एक्यूरेसी 90s में होती है। एंड पार्ट टाइम अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग को बहुत रिड्यूस करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू ओनली फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ, ये मैं टाइम के अंदर कर लूंगा। वीक 7, 8 एंड 9, दीज वीक्स आर ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड मेकिंग अ मार्क। इस टाइम पर अगर आप मॉक्स में स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो अब थोड़ा सा टेंशन लेने की बात है। अगर आपके मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़े तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, यानी कि आपने अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव नहीं करा है, या फिर आपकी सिली मिस्टेक्स कुछ ज्यादा ही हैं एंड नेगेटिव मार्किंग की वजह से यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स। इस टाइम तक आप एटलीस्ट टॉप 10 या 15% में तो होने ही चाहिए अपने मॉक के लीडर बोर्ड में। एंड मॉक्स में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड मॉक्स में आप एटलीस्ट 90 to 80% पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए। बट अटेम्प्ट कर सकते हो का मतलब अटेम्प्ट करना नहीं होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत हार्ड टॉपिक होते हैं, आपको पता है कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो यू कैन अवॉइड देम और मे बी प्लान देम फॉर लेटर। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद और रिविजन के बाद टाइम बचता है तो आप उन क्वेश्चंस पे दोबारा जा सकते हैं। इन वीक्स के अंदर यू विल बी अटेम्प्टिंग अनदर 3 मॉक एज वेल एज जितने भी पास्ट ईयर बचे थे उनको कवर करना है। फेज 3, अब हम फाइनल फेज में हैं। फाइनल फेज में तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी फीलिंग ओवरवेलमिंग डे बाय डे एंड प्रिपरेशन का स्ट्रेस पीक पे होगा। एंड दिस इज वेयर मोस्ट स्टूडेंट डू द बिगेस्ट मिस्टेक दे कैन डू, इंक्रीजिंग देयर स्टडी आवर्स, इंक्रीजिंग देयर इंटेंसिटी, बर्निंग आउट देमसेल्व्स। बिकॉज हम सोचते हैं कि 4 हफ्ते ही तो बचे हैं, वी हैव टू गिव 100%, एंड दिन में हम 8, 10, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक्स, विदाउट हैविंग अ प्रॉपर स्लीप शेड्यूल, नॉट इवन ईटिंग हेल्दी फूड। वीक 10 and 11 आर ऑल अबाउट माइंडसेट, स्ट्रेटेजाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन। इवन इन वीक्स में यू कैन डिक्रीज योर स्टडिंग hours to a sustainable 6 hours, and अपने आप को डेली मेंटली प्रिपेयर करना है। मेडिटेशन इज समथिंग आई रिकमेंड ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। अभी से अपनी कॉन्फिडेंस पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, एज वेल एज स्टार्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स। वीक 10 और 11 में हम सिर्फ 2 मॉक्स करेंगे विद अ फ्रेश माइंड, एंड आवर ओनली एम इज टू गेट द हाइएस्ट मार्क्स वी कैन एवर गेट। और हम इसमें किसी और से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। इवन रैंक्स कुछ भी आए, यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट एंड अंडरस्टैंड करना है कि कौन से एरियाज अभी भी वीक हैं या फिर क्या मिस्टेक्स करी अभी तक। यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग न्यू, एंड अब कुछ नया सीखने का टाइम नहीं है। यू ओनली हैव टू रिवाइज सर्टेन थिंग्स एज वेल एज उनको पॉलिश करना है। जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह का तुम्हें रिविजन करते ही रहना है, बट उसके अलावा तुम्हें सिर्फ टाइम मैनेजमेंट एज वेल एज माइंडसेट पे वर्क करना है। एंड अगर तुम ज्यादा ही ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो तो यू कैन इवन टेक अ ब्रेक ऑफ 1 or 2 days and do something that makes you feel good and come again with a new mindset. And now let's talk about the last 2 weeks of your exam preparation. You will be only attempting one single mock, and उसमें even rank भी नहीं देखनी है, because अगर अच्छी आई तो you might get overconfident, and अगर खराब आई तो you will be feeling underconfident. You have to understand कि अब 2 हफ्तों में कुछ major changes नहीं आने वाले हैं. So you have to understand that कि यार मैं अपना best दे के आऊंगा या आऊंगी in this exam, and that is all you want to do now. In these 2 weeks you will be really focusing on the food you eat. तुम 8 घंटे या 7-8 घंटे एटलीस्ट सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो, एंड गेटिंग योर हैंड्स वार्म एंड प्रैक्टिसिंग पार्ट बी डेली। इन 2 हफ्तों में हम पार्ट बी पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, बिकॉज हो सकता है कि अगर तुम आउट ऑफ प्रैक्टिस रहे तो तुम्हारा एग्जाम में एक आर्ट ब्लॉक आ जाए। इट इज अ रियल थिंग गाइज। एग्जाम में तुम्हें समझ ही नहीं आता है कि भाई क्या हो रहा है, कैसा क्वेश्चन आ गया, मैं इसे सॉल्व कैसे करूं, एंड यू गेट पैनिक। तो अपने मॉक्स को उसी टाइम उसी स्ट्रेस लेवल के साथ देना, वरना तुम एग्जाम में फंस सकते हो। लास्ट 2 days are complete rest for you. Pack your bag, admit card, stationaries, ID proof, bottles, जो भी चीजें तुम्हें रिक्वायर्ड रहेंगी एग्जाम के लिए, गेट इट रेडी। प्रिंट आउट करवा लेना एडमिट कार्ड का, बिकॉज काफी सारे लोग ले जाने ही भूल जाते हैं। एज वेल एज मोस्ट प्रॉब्ली तुम एक ट्रैवल कर रहे होगे तो थोड़ा जल्दी आने का ट्राई करना, एंड ट्राई करना तुम एक दिन पहले ही अपनी लोकेशन के पास पहुंच जाओ, मे बी एट एनी रिलेटिव्स हाउस या फिर एक नियर बाय होटल ले सकते हो। ये स्टंट पुल ऑफ करने का ट्राई मत करना कि तुम 6-8 घंटे ट्रैवल करके सुबह एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हो। दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये 2 दिन का रेस्ट तुम्हारा स्कोर डेफिनेटली तुम्हें इंप्रूव करके ही देगा। अगर ज्यादा ही एंजाइटी या प्रेशर लग रहा है तो थोड़ा बहुत पार्ट भी अपने मन का विदाउट टाइम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, बट नथिंग एल्स। हैव अ प्रॉपर ब्रेक, वॉच सम गुड मूवी। इवन हम कई सारे फन एंड इंटरेक्टिव मोटिवेशनल सेशंस भी तुम्हारे लिए करवा रहे होंगे, जिससे कि तुम्हारा माइंड सेट एक राइट प्लेस में रहे।
इवन मैं एग्जाम से पहले कुछ प्रेडिक्शंस भी करूंगा दैट आई फील कि दैट कैन हेल्प यू आउट। क्या सिनेरियोज होते हैं, कौन सी मिस्टेक्स तुम कर सकते हो, वो सारे वीडियोस भी आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को सो यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ द वीडियोस। एग्जाम डे पे जस्ट वेक अप नेचुरली, फील कॉन्फिडेंट अबाउट द एग्जाम एंड जस्ट गो आउट देयर विद द माइंडसेट कि मुझे अपना बेस्ट देना है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। उसके अलावा एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, इवन विद ऑल द मिस्टेक्स एंड एवरीथिंग। अब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते वक्त देयर आर सम कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। मिस्टेक नंबर 1, स्टार्टिंग पार्ट बी लेट। यू नो व्हाट, ज्यादातर लोग रिसोर्सेज कलेक्ट करते रह जाते हैं एंड बहुत चीजों को बहुत डिले कर देते हैं। मेरे को एक कोट काफी अच्छा लगता है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री was 10 years ago. The second best time is now. तो अभी से स्टार्ट कर दो preparing yourself. Mistake number 2, गिविंग टू मेनी मॉक्स एंड टेकिंग देम वे टू सीरियसली। कई लोग ऑब्सेस हो जाते हैं अपने मॉक्स को लेकर, स्कोर्स को लेकर एंड दे फाइंड देमसेल्फ रियली स्ट्रेस। इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना है बिकॉज स्ट्रेस से तुम्हारे स्कोर्स इंप्रूव नहीं डिक्रीज ही होंगे। मिस्टेक नंबर 3, नॉट हैविंग एन एरर लॉग एंड अवॉइडिंग योर मिस्टेक्स। काफी लोग कोई एरर लॉग ही नहीं रखते, मतलब उन्हें पता ही नहीं है वो क्या गलतियां कर रहे हैं एंड मॉक्स को एनालाइज ही नहीं करते हैं एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। मिस्टेक नंबर 4, क्रैमिंग टिल द लास्ट वीक। जो मैंने लास्ट में चीजें बताई थी, काफी लोग लास्ट डे तक मेहनत कर रहे होंगे एंड दे विल बी बर्निंग देमसेल्व्स आउट। यू नो व्हाट, यूसीड इज नॉट एन एग्जाम जिसमें आपको रट्टा मार के जाना है। दिस इज अ मेंटल एबिलिटी एग्जाम, राइट? यू हैव टू बी ऑन योर हाईएस्ट कॉग्निटिव अवेयरनेस एंड इट इज ऑल्सो एन क्रिएटिव एग्जाम। स्ट्रेस के अंदर और प्रेशर के अंदर क्रिएटिविटी ढंग से बाहर आ ही नहीं सकती। मिस्टेक नंबर 5, कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स एज वेल एज निग्लेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ। काफी लोग अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली ही नहीं लेते हैं प्रिपरेशन में एंड वो दूसरे लोगों से कंपेयर करते रहते हैं। जो वो लोग कर रहे हैं उनको जो लगता है उनके लिए वर्क कर रहा है, जो दूसरों के लिए वर्क कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए भी वर्क करे। सो प्रायोरिटाइज योरसेल्फ इन एवरी वे पॉसिबल। इस जर्नी के अंदर बहुत अप्स एंड डाउन आने वाले हैं, रोने भी वाले हो, हंसने भी वाले हो, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी एक्साइटेड, यू विल बी सुपर पम्प्ड। बट एक चीज रियलाइज करनी है, ये चीज तुम्हें किसी और ने थोपी नहीं है एंड द लाइफ तुम सैक्रिफाइस करने वाले हो या कर रहे हो, वो सैक्रिफाइस तुम्हारे फ्यूचर के लिए है एंड यू विल थैंक योरसेल्फ लेटर कि तुमने इस 90 डेज के लिए अपना बेस्ट दिया। लेट मी टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट, 90 डेज फ्रॉम नाउ यूसीड विल बी ओवर ऑन 18th January 2026। जब तुम एग्जाम हॉल से निकल रहे होगे, यू विल ईदर थिंक काश यार थोड़ी और मेहनत कर ली होती, एक अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली होती, बस 90 डेज की बात थी और मैंने अपना बेस्ट दिया एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। अब जो भी रिजल्ट आएगा आई डोंट केयर। सो व्हाट डू यू वांट फॉर योरसेल्फ? रिग्रेटिंग नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स और गिविंग योर बेस्ट? ऑल द बेस्ट गाइज। आई नो दिस video got really intense. There are certain things I want you to do before you leave this video. First thing is I will be dropping a link of a checklist that you can download as well as print it for yourself. Second thing is definitely join a communities or be a part of paid batches so we can help you achieve your dream. Third, definitely subscribe to this channel and like this video. And you know what, I'm thinking to coming up with a free course out there on our platform as well as आप सारे past years को free में हमारे platform पर attempt कर सकते हो। तो डेफिनेटली विजिट आवर वेबसाइट एंड यूज दीज रिसोर्सेज फॉर फ्री। उसके अलावा बहुत सारी चीजें आने वाली है। स्टॉप वॉचिंग यूट्यूब रैंडमली एंड लास्ट में बस यही चाहता हूँ, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस नाउ, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। तुम्हारा डे 1 आज से ही हो सकता है एंड 90 डेज फ्रॉम नाउ अगर तुम्हारा नाम यूसीड के टॉपर्स में आता है एंड यू बिकम द पार्ट ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन इंडिया, कम बैक एंड थैंक अस लेटर। इट्स योर टर्न चैंपियन, आई नो यू कैन डू इट, जस्ट गेट स्टार्टेड। बाय बाय।